Hello students, how are you? Today we are going to start our class 6 computer for the studying the computer language. Before starting the chapter 1 language, I want to tell you something. Students, take care. When you are going outside, you have to use mask and sanitizer, and when you come back, use hand wash for washing your hands and for keeping yourself healthy. You have to do the meditation and exercise every day. So children, take care, don't go anywhere without mask. Okay, now we are going to start chapter 1, that is your computer language. In that we have to study the two keywords. First keyword is program and another one is programming. In the first keyword, programs, a computer needs specific instructions to perform a task or functions. These set of instructions are called programs. कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हमेशा कुछ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को, वो सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू द कंप्यूटर फॉर completing any task or function are called the programs. Now, next keyword is programming, the process of developing a set of instruction to enable a computer to do a particular task is called programming. That means if you are going to perform any function or any particular task, then in that case the set of instructions कॉल्ड द प्रोग्रामिंग. जब भी आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, हम उसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं. ओके चिल्ड्रंस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज हैविंग द 5 टाइप्स. फर्स्ट इज योर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज and it use the zeros and ones only. Now second one is second generation language. It is assembly language. Now third is third generation language, high level language. Fourth generation language, it is also called the modern high level language. Fifth generation language, it is also called the artificial intelligence language. Students, remember these generations, and also it is your homework. You have to draw this diagram in your notebook. First is first generation language, machine language or low level language. This language is the language that a computer directly understand. ये वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती है. ये उसकी लैंग्वेज होती है जिसमें वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स ही यूज़ करता है, 0 और 1. दिस इज़ द लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शंस आर मेड अप ऑफ बाइनरी नंबर्स एंड वी नो about the binary numbers. Binary numbers are two only, 0 or 1. The binary digit 0 represents the off state and the binary digit 1 represents the on state. हम जो बाइनरी नंबर्स यूज़ करते हैं उसमें 0 स्टूडेंट्स हम ऑफ के लिए यूज़ करते हैं और 1 ऑन स्टेट के लिए यूज़ करते हैं. द डायग्राम इज़ गिवन हेयर. यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इन विच only the two numbers are used, 0 and 1. नीचे दिए गए फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ की गई हैं, 0 and 1. तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. These are the advantage and disadvantage of the machine language. First we will discuss about the advantages. First advantage, it run very fast. It run very fast because the language that it is using, that is 0 and 1, and computer directly understand. That's why its working is very fast. कंप्यूटर 0 और 1 बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है. इसी वजह से उसमें यदि कोई भी फंक्शन मशीन लैंग्वेज में किया जाता है तो वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है. सेकेंड, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द CPU. इसमें मशीन लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं वो डायरेक्टली
CPU एग्जीक्यूट करता है, CPU रन करता है, इसीलिए भी आपकी मशीन लैंग्वेज की स्पीड फास्ट होती है। इट यूटिलाइज लेस मेमोरी, ये मेमोरी कम यूज़ करता है बिकॉज इट यूज़ द ज़ीरोज़ एंड वन एंड इट डजंट कन्वर्ट दी ज़ीरोज़ एंड वन टू अदर। ये सिर्फ ज़ीरो और वन को यूज़ करता है और इन्हें वो किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्टली उन्हीं ज़ीरो और वन पे वर्क करता है। तो कन्वर्ट करने का टाइम भी बच जाता है, इसीलिए उसे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं होती। यहीं हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। Let's discuss with the disadvantage of the machine language. It is not easy to fix error in coding. If any error occurs in our coding, then it is very hard to find. यदि कोई भी गलती हो जाती है, let us suppose ज़ीरो की जगह वन लिख दिया या वन की जगह ज़ीरो लिख दिया, तो ये सब चीज़ें ढूंढना, ये एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें एरर ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। Second disadvantage is one type of computer is used for the particular machine language. मशीन लैंग्वेज आपके हर जगह यूज़ नहीं होता, ये आपकी पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज के साथ में ही यूज़ किया जा सकता है। तो एक तरीके की मशीन लैंग्वेज के लिए आप पर्टिकुलर कंप्यूटर ही आपको यूज़ करना पड़ता है। दूसरा, now next disadvantage is it is difficult to debug the program written in the machine language. If any error is there, then it is very difficult to remove that error. मशीन लैंग्वेज में यदि कोई प्रोग्राम में मिस्टेक होती है तो उसे ढूंढ पाना और उसे फिर ढूंढ करके सही कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो ये आपके 3 डिसएडवांटेज थे, जिसमें एरर एक तो फिक्स नहीं कर सकते, एक दूसरा डिसएडवांटेज कि आपके हर मशीन लैंग्वेज के लिए आपको एक ही तरीके का कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है। आप हर जगह मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते, और प्रोग्राम में यदि मिस्टेक हो भी जाए तो उसे करेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ योर सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द assembly language. Second generation language, it is a programming language that is associated with the assembly language. Assembly language is also called the low level language. In assembly language, programs are written using the mnemonics code instead of the zeros and one. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बस इसमें एक चेंज यही होता है कि हम इसमें निमोनिक्स कोड्स यूज़ करते हैं, ज़ीरो और वन यूज़ नहीं करते जो हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया करते थे। निमोनिक कोड्स आर इंक्लूड इंग्लिश वर्ड्स एंड लेटर्स विच ए ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड ईजिली। निमोनिक कोड्स हमारे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करता है जो कि ह्यूमन बीइंग बड़ी इजीली उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। वर्क विद असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर देन द बाइनरी लैंग्वेज। हम यदि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन को कंपेयर करें तो असेंबली लैंग्वेज को याद रख पाना बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हम इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, ज़ीरो और वन यूज़ नहीं करते। What are the mnemonic codes? Mnemonic codes, you can see the word addition. In the mnemonic codes we can write add. For the multiplication we can write MUL. For the subtraction we can write sub, and for the division we can write the div. That means for the mnemonic codes we are using small keywords for the particular word. These small keywords called the mnemonic codes. आपकी एडिशन के लिए हमने ऐड यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब और डिवीज़न के लिए DIV। तो इन सब चीज़ों को याद रख पाना कंपेरेटिव टू मशीन लैंग्वेज आसान होता है, इजी होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के कंपेरेटिव इजी होती है। यहीं पे आप एग्जाम्पल देखें। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। In the decimal system we are writing here 3 plus 5.
In the machine language, we will convert 3 and 5 into the binary language, and the code for the 3 and 5 are the 3 0 1 1, that is the binary code for the 3, and 1 0 1, that is the binary code for the 5. And in the assembly language, you can see what we have write for the addition. We have write here add 3 comma 5. That means what we are going to add two numbers. The numbers are 3 and 5. Here we doesn't need to remember the binary codes of 3 and 5. We can use these decimal numbers directly. Okay, that's why we can say the second generation language is easier and easy to remember as compared to the first generation language. Now, advantage and disadvantage of the assembly language second generation language. Advantage, it uses English words. assembly language आपकी इंग्लिश यूज़ करती है, इंग्लिश वर्ड यूज़ करती है, एंड मेक इट ईजियर एंड रीडेबल बाय द ह्यूमन बींग्स. आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने की वजह से, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने की वजह से ह्यूमन बींग्स के द्वारा बड़ी आसानी से पढ़ ली जाती है. नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ ईजी टू लोकेट. हम बड़ी आसानी से इसे लोकेट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ it is easy to fix the error. If any error occur in the assembly language programming, then we can easily fix because it is using the English words and we can search them easily. We can search the errors easily. These are the advantage. Now we will discuss about the disadvantage. It is time consuming. It takes time because it is also a machine dependent language. It means different assembly language need to be write for different type of computer. ये भी आपका एक मशीन लैंग्वेज की तरह ही होता है, क्योंकि इसको आप जब भी लिखोगे तो आपको डिफरेंट मशीन लैंग्वेज के तरह से ही अलग अलग सिस्टम चाहिएंगे. तो आपको इसलिए ये आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और हर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए आपको एक डिफरेंट तरीके का कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये आपकी दो डिसएडवांटेज हुए. टाइम कंज्यूमिंग हुआ क्योंकि आपको हर बार प्रोग्रामिंग हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग से लिखनी पड़ेगी. आप एक ही प्रोग्रामिंग हर जगह यूज़ नहीं कर सकते. तो ये आपके दो असेंबली लैंग्वेज के disadvantage हुए. Now move to the next slide, that is your third generation language. Third generation language means high level language. In this language, the instruction written in high level language are easy to understand and write. यहाँ पर आपकी जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, दे आर मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आपकी काफ़ी इजी होती है समझने के लिए और लिखने के लिए. इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्टन, कोबॉल, सी प्लस प्लस एंड जावा. कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर दैन द मशीन लैंग्वेज, so it need a translator which convert assembly language and high level language program into the machine language. It means what? Computer we know it understand only on the binary numbers. ये आपका कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या फिर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में. तो कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली. बहुत आसानी से इसे यूज़र अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन, इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. ये इजी इसलिए होती है क्योंकि हम इसमें
इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए यूज़ होते हैं, वही ऑपरेटर्स हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मशीन, ये आपकी मशीन पर डिपेंड नहीं होती, ये अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क करती है, और इसमें हम प्रोग्राम हमारे इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से ही राइट करते हैं। Okay students, now move to the next slide. It is the fourth generation language. It is developed to get closer to the human language in the term of thinking. That means ये जो लैंग्वेज आपकी बनाई गई है, ये आपकी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। जैसे ह्यूमन सोचता है, जैसे उसके कॉन्सेप्ट्स वो बनाता है, उसी के हिसाब से लैंग्वेज बनाई गई है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट होती है। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपकी लैंग्वेज जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दैट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज can be used on any operating system, any computer system. The fourth generation language can be used. For example, that are the SQL, Focus, Wave, Python, and many more it is having. Okay, now come to the features of fourth generation language. First feature of the fourth generation language, it is user friendly, programmer फ्रेंडली एंड वर्सेटाइल। दैट मीन्स इसमें वर्क करना बहुत आसान होता है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, लॉन्ग टर्म वर्क करती है। नाउ नेक्स्ट इज़ इट रिक्वायर मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र। क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होती है और इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, तो वो सभी चीज़ें इस प्रोग्रामिंग को ईजियर बनाती हैं। तो ये आपका मिनिमम एफर्ट्स में ही प्रोग्रामिंग रेडी हो जाता है। इट एनहेंस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी। आपको इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर इसमें ऑपरेटर्स का ध्यान रखना है। हम सिंपल जो इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं वही हमें इसमें यूज़ करना होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वी हैव टू यूज़, दैट्स वाई इट्स एफिशिएंसीज इंक्रीज, it enhance the programming efficiency. Okay, now next, it process high speed of executions and then the other language. इसकी जो प्रोग्रामिंग की स्पीड होती है एग्जीक्यूट की, जब आप प्रोग्राम बना लेते हैं और जब उसे रन करवाते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ही हाई रहती है। दैट मीन्स इसमें जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो वो बहुत ईजीली रन हो जाएगा। इट टेक वेरी लेस टाइम टू execute the program. It is very easy to run the program in the fourth generation language. Now next is it reduce the overall time, effort and cost. ये हमारा टाइम भी सेव करता है, हमारे एफर्ट्स और कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। टाइम कैसे? क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें सोचना नहीं होता, हमें इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें क्या लिखना है, तो हमारा टाइम बच जाता है। एफ़र्ट्स इसलिए क्योंकि लैंग्वेज आपकी काफ़ी इजी रहती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें लिखना होता है, तो इसमें एफ़र्ट्स भी हमारे कम हो जाते हैं। तो ये हमारा सब कुछ रिड्यूस करता है, हमारा ओवरऑल टाइम, एफ़र्ट्स एंड कॉस्ट। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम, efforts and cost that's incurred during the development of any software. आपका ये हमें हर फील्ड में यूज़फुल रहता है। Now we are going to start now fifth generation language. Fifth generation language is used in the artificial intelligence research. Its primary goal is to eliminate the need of implementing an algorithm to solve a problem. Artificial intelligence research means it uses the computer use the program that human behave and think. कंप्यूटर में जब फिफ्थ जनरेशन के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, किसी भी प्रॉब्लम के आने पर उसे कैसे थिंक करता है, वो सभी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। तो यही सभी चीज़ें हमारी कलेक्टिव क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। इसमें
जो हमारा फर्स्ट गोल होता है वो यही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक एल्गोरिथम होता है. These are designed to make the computer solve a given problem on its own without any interference of the programming. That means once you have made any program for any problem, then after there is a no need of the programmer interference. जब आपने फिफ्थ जनरेशन में किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक बार एल्गोरिदम या प्रोग्राम बना दिया है, तो प्रोग्राम बनाने के बाद में प्रोग्रामर की कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं रह जाती है. उसके बाद प्रोग्राम कंप्यूटर में अपने आप ही उसके लिए रिएक्ट करता है, रिजल्ट देता है. इट्स एम इज़ टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन. कोई भी प्रॉब्लम आने पर कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने उसमें बनाया है वो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बिहेव करता है, थिंक करता है, वो बिल्कुल वैसे ही उसके लिए रिएक्ट करता है, वैसे ही उसके रिजल्ट्स देता है. Once the programmer dictates how the solution should appear biologically, specifying constraints and the condition, the computer is then free to search for a solution. किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपने यदि उसमें बता दिया है कि यदि ये कंडीशन आती है तो ये सॉल्यूशन होगा, ये प्रॉब्लम आती है तो इसकी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो उसके बाद प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कंप्यूटर फ्री होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे उसके लिए क्या सॉल्यूशन देना है. उसे बार बार प्रोग्रामिंग चेंज करने की या फिर आपको उसको प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करता है और रिप्लाई करता है, रिजल्ट्स देता है. Now the example for the 5th generation artificial intelligence research are Prolog, OPS5 and the Mercury. These are the examples that we can see for the 5th generation. Now move to the next slide, translators. Before the 5th generation and the 4th generation, we have studied the 3rd generation in which we see the word translator. The translator it is used to convert the instructions into machine language to the make it a computer understandable language. ट्रांसलेटर का फंक्शन क्या होता है? आपकी कोई भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिससे कि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके, इजीली उस पर वर्क कर सके, समझ सके. तो ट्रांसलेटर हमारे पास में 3 तरीके के होते हैं. वी हैव द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, दीज आर द 3. फर्स्ट वन इज़ असेंबलर, सेकेंड वन इज़ इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज़ कंपाइलर. वी विल डिस्कस these 3 translator one by one. Now next 2 key words again here. First is source program or source code. The program written in assembly language or high level language, that is called the source program. If we talk about the assembly language or high level language, or we can say 3rd generation language, these are called the source program or the source code. And second one is object program and object code. The program converted into the machine language using a translator, that is called the ऑब्जेक्ट कोड. मतलब कोई भी प्रोग्राम जो आपके असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, हम उसे क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम. और जब प्रोग्राम कोई भी असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में लिख लेते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट assembler. That is a type of translator. Assembler, it translates the assembly language program into machine language program which can be understood by the processor. Assembler क्या करता है? आपके जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि कंप्यूटर और प्रोसेसर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके. यू कैन सी इन द डायग्राम assembly language program, it is giving to the assembler as input. At the output side, assembler is giving the machine language program.
दैट मीन्स assembler convert the assembly language into the machine language. assembler का फंक्शन क्या होता है? assembly language को machine language में ट्रांसलेट करना. Now next is compiler. Compiler, it is a language translator program which convert a high level language program into the machine language. That means compiler, you can see in the diagram, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं वो एज ए इनपुट कंपाइलर को दिए जाते हैं और एज ए आउटपुट हमें मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम मिलता है. दैट मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज easily. That's why we convert the assembly language or high level language program into the machine language. कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इस प्रोग्राम में जितने भी सिंटैक्स एरर होते हैं वो सभी को रिमूव करता है. इट रिमूव ऑल द सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर मतलब आपने प्रोग्रामिंग लिखते वक्त यदि कोई भी मिस्टेक कर दी है, कीवर्ड गलत लिख दिया है, कोई इंग्लिश वर्ड गलत यूज़ कर लिया है, तो वो एरर वहाँ पर डिस्प्ले करता है जिसे आप रिमूव कर सकते हैं. इट टेक्स लेस टाइम टू कंपाइल मशीन कोड. ये आपके मशीन कोड को रन करने के लिए बहुत ही कम टाइम लेता है. कंपाइलर वर इंट्रोड्यूस इन द 1952. फर्स्ट टाइम जब कंपाइलर यूज़ किया गया था वो 1952 में हमारा यूज़ किया गया था. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांसलेटर इज़ योर इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम स्टेटमेंट वाइज. इंटरप्रेटर आपके कंपाइलर की तरह एंटायर प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट नहीं करता. ये प्रोग्राम को वन बाय वन रीड करता है और एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है. इट टेक्स अप वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एट ए टाइम, ट्रांसलेट इट, देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. व्हाट इट डू? इट टेक वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, देन ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट. इट checks all the things. That means what? ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की आपने जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को लेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसे रन करवा के देखेगा कि उसमें कोई एरर है या नहीं. ठीक है. जबकि कंपाइलर में क्या होता था, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता था और फिर उसमें एरर चेक किया करता था. लेकिन इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को लेता है, उसे कन्वर्ट करता है और फिर उसमें एरर रिमूव करता है. यदि उसमें वहीं पे एरर आ जाते हैं तो जब तक वो एरर हम रिमूव नहीं कर देते वो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर नहीं जाता. It repeats the same procedure until the last statement is translated into machine language. ये सेम प्रोसीजर, वही स्टेटमेंट को लेना, उसे ट्रांसलेट करना और उसे एग्जीक्यूट करना, ये तब तक करता रहता है कि जब तक लास्ट स्टेटमेंट इसे नहीं मिल जाता, वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जब तक नहीं कर देता तब तक ये सेम 3 स्टेप बार बार करता ही रहता है. एक स्टेटमेंट लिया, उसे ट्रांसलेट किया और उसको फिर एग्जीक्यूट करके देखा. इफ़ देयर आर एनी सिंटैक्स एरर इन द सोर्स कोड प्रोग्राम, दे आर ब्रॉट टू अटेंशन ऑफ द प्रोग्रामर एज सुन एज द प्रोग्राम स्टेटमेंट इज़ इंटरप्रेटेड. जैसे ही कोई सिंटैक्स एरर आता है तो ये आपके प्रोग्रामर को इन्फॉर्मेशन देता है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर नहीं जाता. इट मेक्स फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर ईजियर एंड क्विकर. इंटरप्रेटर, क्योंकि वहाँ पे हमें एक एक स्टेटमेंट पे वर्क करना होता है तो ये काम हमें बहुत जल्दी हम कर पाते हैं और कोई भी एरर उसमें यदि आती भी है तो हम बहुत ईजीली उसे ढूंढ सकते हैं और उसे बहुत जल्दी ही सही कर सकते हैं. तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. कंपाइलर, इट कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम. इंटरप्रेटर, इट convert the program statement wise. Okay, now you can see the figure for the interpreter. High level language, it is used as the input for the interpreter. At the side of output it gives machine language program. इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट की तरह से लेता है और आउटपुट में मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम देता है. ठीक है चिल्ड्रंस, तो ये हमारा आज का
चैप्टर हुआ. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की जनरेशंस. वी हैव सीन ऑल द कंप्यूटर जनरेशन one by one. Now if you are having any doubt and any problem, you can contact me. I will explain on the all the things that you have not understand. Okay, now it's time to giving the homework. The types of computer language, that means the slide number 4 you have to draw in your notebook. Okay, okay children, take care and stay safe. When you are going anywhere, use mask, use sanitizer. टेक केयर चिल्ड्रंस. फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए सेफ रहें, अपना ध्यान रखें. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.